Assalamu alaikum guys. So today we are going to discuss the probability. So first of all, by definition, probability is a numerical measurement of the likelihood that an event will occur. तो किसी भी event के occur होने के chances को हम अगर numerically measure कर रहे हैं तो that is known as the probability. So probability values are assigned from 0 and 1. तो किसी भी इवेंट के जो भी चांसेस होंगे सो दैट विल बी फ्रॉम 0 to 1. तो अगर किसी भी इवेंट के ऑकर होने के चांसेस अगर उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 बता रहा है तो दैट मींस देयर आर 0% chances of occurrence of that event. It means that event will not occur. So in the same way, if any event has the assigned value as 1, it means that event has 100% chances of occurrence. It means that event will occur in any way. And in the same way, if any event has assigned value of probability as 0.1, it means that event has 50% chances of occurrence. So 50% means it has equal chances of occurrence as well as not occurrence. It means that event may occur or may not occur. So if we move towards the examples of probability, then if we have a die which has 6 faces, each is assigned with 1, 2, 3, 4, 5 and 6. If we roll a dice, what are the chances that the result of rolling a dice is 2? तो अगर हम किसी भी डाइस को रोल कर रहे हैं तो हमारा जब रिजल्ट 2 आए तो उसके कितने चांसेस हैं? तो जो भी डाई है उसमें जो भी 6 डिजिट्स हैं उनके इक्वल चांसेस ऑफ ऑकरेंस हैं. तो कोई भी आ सकता है, हैव इक्वल चांसेस. तो ये जो 2 है इसके कितने चांसेस हैं? दिस इज 2 इज 1 of 6. जो भी हमारे पास 6 हैं उनमें से एक वो भी हो सकता है. तो जो भी चांसेस हैं वो 1 of 6 हैं. तो दैट इज द चांसेस ऑफ ऑकरेंस इज 1/6. So in the same way, if we ask another question, that what are the chances of occurrence of 2 or 3? तो अगर हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी चांसेस हैं कि या तो नंबर 2 आए और 3 आए. तो 2 or 3 consists 2 of 6. So the chances of occurrence is 2/6. 2/6 is equal to 1/3. In the same way, if we ask another question, that what is the chances that the rolling of dice results in any number from 1 to 6? So it means there is 100% chances. अगर हम dice को roll करवा रहे हैं तो that will result any number from 0, any number from 1 and 6. So there is 100% chances of occurrence of this event. So if we take another example of coin, so if we toss a coin, the possible outcome will be a head or a tail. If we ask that, so what is the chances of occurrence that the tossing of a coin results head? So it means head have assigned value 1 of 2. It is 1 of 2 outcomes. So it has half chances. It means it has 50% chances of occurrence. And now we will talk about random experiment. तो random experiment simply जब किसी भी experiment को जब हम करने जा रहे हैं तो उसकी experimental outcome वो well defined हो. तो and जो भी जब हम experiment को perform कर रहे हैं तब उसको हम अगर दूसरी बार perform कर रहे हैं तो the result may or may not be the same. And other is और जो भी उनकी रिजल्ट आ रही है वो हमारे पास सैंपल स्पेस में से ही आ रही है. सो दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. अनदर इज सैंपल स्पेस. सो सैंपल स्पेस सिंपली इज द सेट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल आउटकम. तो जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं उसके जो भी एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स आ रही हैं सो द सेट ऑफ ऑल दोज एक्सपेरिमेंटल आउटकम इज नोन एज द सैंपल स्पेस. फॉर एग्जांपल मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ. The experimental outcome will be a head or a tail. It means the result might be a head or a tail. In the same way, अगर मैं किसी dice को roll करवा रहा हूँ, the result will be either 1, 2, 3, 4, 5 or 6.
any one from these all. And other is sample point. The sample point is it is another name of experimental outcome. जो भी हमारे पास experimental outcomes आ रही हैं, these experimental outcomes, these all are experimental outcomes. तो इनको हम sample point भी कह सकते हैं. So now we will talk about the first counting rule, that is the counting rule for multiple steps experiment. तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट को अंडर प्रोसेस है और जिसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं, इसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स हैं, तो अगर हम उसके जो भी एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स को फाइंड करने हैं तो हम कैसे करेंगे? सो द काउंटिंग रूल सेज दैट एक्सपेरिमेंट विद सीक्वेंस ऑफ k स्टेप्स. एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें k स्टेप्स हैं विद n1 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द फर्स्ट स्टेप. जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो हम ले रहे हैं उनमें जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं n1 है and n2 possible outcomes of the second step and so on. और जो हमारे पास दूसरा स्टेप है उसमें n2 possible outcomes हैं. and the same way अगर हमारे पास n3 है जो हमारे पास थर्ड स्टेप को शो कर रहा है and so on. then the total number of the experimental outcome is given by, अगर कोई भी हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं and this way, और उनके जो भी हमारे पास जो ओवरऑल जो टोटल एक्सपेरिमेंटल आउटकम होंगे वो इज सिंपली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ possible outcomes of each step. So for example n1 is the possible outcome of the first step, n2 is the possible outcome of the second step, n3 is the possible outcome of the third step, and in this way it is the multiplication of all the possible outcomes that are coming under experiment. This is the counting rule for multiple step experiment. We have to just multiply the possible outcomes of each step. So I have taken an example. तो अगर हमारे पास दो स्टेप्स में एक हम एक्सपेरिमेंट को ले रहे हैं, तो अगर हमारे पास दो कॉइन्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ. तो अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जो भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं वो दो है, क्योंकि जो भी हमारे पास कॉइन है उसको टॉस कर रहा हूँ तो इधर मेरे पास रिजल्ट वो हेड आएगा और टेल आएगा. तो हमारे पास जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो है दो पॉसिबल आउटकम्स हैं. तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप की जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय, अगर अब हमारे पास दूसरा स्टेप है कि अब मैं दूसरा जो कॉइन है उसको भी टॉस करूंगा. तो दूसरा कॉइन के भी पॉसिबिलिटीज 2 है, तो दूसरे की पॉसिबिलिटीज 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4. तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है वो 4 आ जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्री डायग्राम. तो ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं? तो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप में जो मैंने कॉइन को टॉस किया था उसकी जो भी रिजल्ट है वो है हेड. अगर फर्स्ट कॉइन की हेड है, अगर मैं दूसरा टॉस करने वाला हूँ तो हमारे पास दोबारा से ये जो दो पॉसिबल आउटकम्स हैं और वो हेड आएगा और वो टेल आएगा. तो जो हमारे पास फाइनली जो आउटकम्स बनी है वो अगर पहले में मेरा हेड आया है तो दूसरा हेड भी आ सकता है, और जो पहले हेड आया है और दूसरा टेल भी आ सकता है. इन सेम अगर मैं ये कंसीडर करूं कि जो मेरे पास फर्स्ट स्टेप में जो कॉइन को टॉस किया था उसकी जो भी रिजल्ट है दैट वाज टेल, अगर वो टेल थी तो हमारे पास और भी दो पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं कि तो टेल थी, तो अभी जो मैं दूसरा कॉइन को टॉस करने जा रहा हूँ तो वो भी हेड हो सकती है और टेल भी हो सकती है. तो जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं वो है these 4. तो जो भी हमारे पास सैंपल स्पेस बन रही है फॉर दिस होल एक्सपेरिमेंट इज हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल. सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग रूल फॉर मल्टीपल स्टेप्स एक्सपेरिमेंट. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन. तो कॉम्बिनेशन सिंपली इट इज द काउंटिंग रूल जिसमें हम जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है उसमें जो भी पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स को हम चूज नहीं कर रहे, उनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और उनके जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो हमारे पास जो भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम होंगे तो उनको फाइंड करने के लिए वी आर यूजिंग कॉम्बिनेशन. कैपिटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनमें वी आर सेलेक्टिंग ओनली ए स्मॉल एन ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो इनको हम अगर शो कर रहे हैं तो एन सी ऑफ एन कॉम्बिनेशन कैपिटल एन कॉम्बिनेशन स्मॉल एन, और हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं. तो दैट इज इक्वल टू जो भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसको हम सॉल्व करने के लिए
अगर यहाँ पे n है, यहाँ n का मतलब है जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट में पूरे के पूरे जो एलिमेंट्स हैं, जो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट डिनोट्स कैपिटल N एंड स्मॉल n। इट मींस जो हम उनको जो सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे पास पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनमें से जितने सिलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट डिनोट्स स्मॉल n। तो इनको इनका जो भी फार्मूला है वो है n फैक्टोरियल, कैपिटल N फैक्टोरियल डिवाइड बाय कैपिटल N माइनस स्मॉल n होल फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। और जो भी हमारे पास फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल इट इज सिंपली जो भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो जिस नंबर का हम फैक्टोरियल ले रहे हैं, इसका मतलब है जो भी उसके नीचे जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग 4 फैक्टोरियल, इट मींस 4 के पीछे जो भी है, 4 और 4 के पीछे जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उन सब की मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 3 2 1। इन द सेम वे अगर मैं कोई भी किसी नंबर का फैक्टोरियल ले रहा हूँ, तो दैट विल इक्वल टू जो भी उनके पीछे वो खुद और उनके पीछे जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द फैक्टोरियल। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, तो हमारे पास एक सैंपल स्पेस है जो है सेट ए है, जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये फॉर एग्जांपल 3 बंदे हैं, मुझे 2 बंदे सेलेक्ट करने हैं। तो हमारे पास कौन से पॉसिबल आउटकम्स हैं कि मैं 2 बंदे सेलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ए और बी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और ए और सी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और थर्ड हमारे पास है बी और सी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आई हैव ओनली 3 possible outcomes that I can select 2 from the 3 persons। अगर मैं इसको फॉर्मूला से देखूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कैपिटल N है वो जो हमारे पास पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट जितने भी एलिमेंट्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो है 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे होगा 3, और हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वी आर सिलेक्टिंग 2 के जो हमारे पास क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि जो भी हम इनमें से 3 में से 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वी आर सिलेक्टिंग 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व किया है तो सिंपली हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 3। इट मींस वी हैव 3 चांसेस टू सिलेक्ट 2 पर्सन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। तो वो 3 यही हो सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द परम्यूटेशन। सो परम्यूटेशन भी हमें अलाउ करता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम जो भी कैपिटल N ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से हम फ्यू ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, और उनके जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल आउटकम है उसको फाइंड करने के लिए। बट एंड द परम्यूटेशन, द ऑर्डर ऑफ दोज आउटकम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो द ऑर्डर मैटर्स एंड द परम्यूटेशन। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल आउटकम है 1 2 3, एंड और दूसरा हमारे पास है सेम ही ऑब्जेक्ट्स है लेकिन उनका ऑर्डर डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल दिस इज n2 1 3, so these both are different, but and the combination these both are denoting the same। किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम उनके जो भी कैपिटल N ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से हम n सिलेक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं वो इक्वल होगी n फैक्टोरियल कैपिटल N फैक्टोरियल अपॉन कैपिटल N माइनस स्मॉल n होल फैक्टोरियल। तो फॉर एग्जांपल अब एक हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें सैंपल स्पेस है, जिसमें हमारे पास तीन फॉर एग्जांपल 3 बंदे ए बी और सी। तो अगर मुझे 2 बंदों को पोजीशन देनी है, एक को फर्स्ट पोजीशन और दूसरे को सेकंड पोजीशन, मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं कौन से 2 बंदे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि अगर मैं एक बंदे को फर्स्ट प्राइज देता हूँ तो उस सेम बंदे को सेकंड प्राइज नहीं मिल सकता, और अगर सेकंड बंदे को फर्स्ट प्राइज मिल गया तो फर्स्ट को सेकंड नहीं मिलेगा। तो इन द फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए सेट है जिसमें ए बी सी है, तो अगर पॉसिबल आउटकम्स हम देखें, तो अगर मैं ये जो ए है इसको मैं अगर फर्स्ट सबसे पहले मैं ए को फर्स्ट पोजीशन दे रहा हूँ और बी को सेकंड पोजीशन दे रहा हूँ, तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ए को फर्स्ट पोजीशन दे रहा हूँ और सी को सेकंड पोजीशन दे रहा हूँ, तो हमारे पास ये दूसरी कंडीशन हो गई। और थर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, बी को फर्स्ट पोजीशन दे रहा हूँ और सी को सेकंड पोजीशन दे रहा हूँ, तो ये भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो बी है इसको मैं फर्स्ट पोजीशन दे रहा हूँ और ए है उसको सेकंड पोजीशन दे रहा हूँ, और जो हमारे पास अनदर है उसमें हम सी को फर्स्ट पोजीशन दे रहे हैं और जो ए है उसको हम सेकंड पोजीशन दे रहे हैं।
और जो हमारे पास लास्ट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, सी को फर्स्ट पोजीशन दे रहे हैं और जो हमारे पास बी है उसको सेकंड पोजीशन दे रहे हैं। तो इन सब में हमारा ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, क्योंकि अगर हमारे पास ये ए बी आ जाए, ये ए बी और यहाँ पे बी ए है, तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। तो एंड परम्यूटेशन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। तो अगर हम इसको फार्मूला से देखें कि कितने हमारे पास पॉसिबल आउटपुट्स बनेंगे, तो हम क्या करें, 3 परम्यूटेशन ऑफ 2। हम जो भी हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट में से हम 2 ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 3 into 2 और यहाँ पे 3 minus 2 is equal to 1 फैक्टोरियल। सो 1 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आ गया और 3 2 are 6। तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है वो है 6, 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे सिर्फ परम्यूटेशन में हमारे पास ऑर्डर मैटर करता है।